Hello, all. Welcome to An Academy. Crack all management examinations with us. Okay, so An Academy is India's largest learning platform for CAT. So this is me. My name is Rajul Khare, and I have cleared CAT 7 times in a row. I've also done my MBA from MDI Gurgaon 2014-16 batch. So out of the three sections, I'm taking two sections, which are quantitative aptitude and logical reasoning data interpretation. Okay, so I've mentored more than 5,000 students in the last 8 years. Because apart from this, I also run a company called Tamasha Entertainment, which is a production house of theatre and films in Gurgaon. Okay, so moving ahead, what you'll get in an academy will be the daily live classes, live tests, quizzes, structured courses, unlimited access to the classes. There are other educators as well. So once you enroll for the classes, you will be having access to all the educators. There will be live classes, batches for syllabus completion, certain courses which are starting soon. So what's the Unacademy advantage? Why should you join an academy? Will be the schedule that works for you. There's no language barrier. You can download the lectures anytime, anywhere. Okay, so you can learn anytime. Download the lectures if you're not able to attend the live lectures. You can interact with your educator, get your doubts cleared, answer the live polls, live test quizzes, detailed report analysis. There will be PDFs and learning materials. So now coming to a subscription model for CAT. Okay, so for CAT subscription, there is a 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, and 24 months subscription. Okay, so I will suggest you go for 12 months because here the pricing will be just 1313 rupees per month. If you go for a 1 month subscription, it will cost you around 3000 per month, or either go for a 24-month subscription in case you are planning for CAT 2021. That will just cost you 788 rupees per month. This is my code RKUS. Please note down this code. You will be able to get a discount of 10% if you use this code. Okay, guys. Okay. So today's session is about how to crack quantitative aptitude cutoffs. Okay, so quantitative aptitude section का strategy session है आज कि कैसे clear होता है quantitative aptitude का cutoff. What is quantitative aptitude altogether? What are the kind of questions which come in the examination? How do you clear the cutoffs for that? We'll be talking about it in the entire class. Okay. So quantitative aptitude का पहली बात cutoff कितना होता है? Cutoff जानने से पहले कितने questions आते हैं? As you all know, there will be around 34 questions of 3 marks each, which will fetch you around 102 marks. So 102 marks का paper होता है quant का. If I talk about cutoffs, the cutoffs keeps on changing every year. So there is no such thing कि इतना cutoff होता है quant का. But talking about previous 2 years or 3 years, I can say that if you score more than 50 marks in quant, you will be definitely fetching more than 99 percentile. If the paper is medium, ठीक है ना. इफ द पेपर इज डिफिकल्ट देन अराउंड 45 प्लस मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा. इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, okay, and if the paper is easy, you will have to get around 60 plus marks to fetch a 99 percentile. ठीक है, दिस डेटा हैज टू बी क्लियर. तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर मीडियम पेपर आता है तो जो 99 परसेंटाइल है you will get it around 50 plus marks. 95 percentile है which you will get around 40-45 marks. And जो cut off है which is around 85 to 90 percentile, you will get it around 30-35 marks. ठीक है ना. तो हमें मैक्सिमम टारगेट भी अगर क्वांट का इजी पेपर भी आता है तो हमें 60 प्लस मार्क्स टारगेट करने हैं और मे बी 50 प्लस मार्क्स हर हालत में लाने हैं ताकि आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाए. इन केस योर क्वांट इज नॉट गुड एंड यू आर एबल टू नॉट एबल टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन क्वांट, देन आई विल सजेस्ट कि आप 40 प्लस मार्क्स तो फिर भी टारगेट करिए क्वांट में. वर्स्ट टू वर्स्ट केस में यू शुड गेट अ स्कोर ऑफ 30-35. ठीक है, क्लियर है गाइस. ना हाउ डू यू गेट दिस स्कोर? अगर मैं इसको नंबर ऑफ क्वेश्चन से मेजर करूं, अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन से मेजर करूं तो कैसे होगा? ठीक है ना. सो आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस, इफ योर अटेम्प्ट्स आर अराउंड 25 प्लस, ठीक है, एक्यूरेसी रेट हमें क्वांट में अगर 25 प्लस है तो हमें 80 to 85% एक्यूरेसी रेट रखनी है. एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. अटेम्प्ट से कुछ भी नहीं होता अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है. सो जनरल एक्यूरेसी आई एम कंसिडरिंग इट इज अराउंड 80-85%. So out of 20 question, if your accuracy is around 85%, you will be able to solve 20 questions correct. If your 20 questions are correct in quants, तो 23 are 60, और अगर -5 भी हो गया तो you will be able to get around 55 question, 55 marks, 55 plus marks आ जाएगा आपका.
ठीक है गाइज, तो अगर आपके 20 क्वेश्चंस आप सही करके आते हो क्वांट्स में, तो आपके आराम से 55-60 तक मार्क्स आ जाएंगे and you will be able to get a very good percentile. If the paper is difficult, you will be around 99.5, and if the paper is medium, you will be around 99.2 maybe. If the paper is easy, yeah, then you will get maybe 97-98 percentile in that case. ठीक है, तो पेपर का पैटर्न चेंज होता रहता है. वी कांट टॉक कि पेपर इजी आएगा या टफ आएगा या मीडियम आएगा, बट टफ आने के चांसेस नॉर्मली कम ही होते हैं क्वांट्स के, बिकॉज टफ हमारा LRDI ज्यादा आता है. ठीक है ना. सो फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर थोड़ा सा वर्बल टफ आया था. LRDI quant both were medium. Since it were medium, so around 50 plus marks पे आपका 99 percentile आ गया था quant पे. क्लियर है गाइज. तो मुझे अटेम्प्ट्स कितने रखने हैं quants में, दैट्स द पॉइंट. अगर आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, तो अगर मैं आपको बोलूं आप 20-22 अटेम्प्ट्स करके आइए और आपकी 90% एक्यूरेसी रहती है, देन ऑल्सो यू विल गेट अराउंड द सेम मार्क्स. और 22 अटेम्प्ट्स में अगर आपकी 90% एक्यूरेसी रहती है, तो 19 3 is 57 minus 3. It will give you how much? Around 54 marks. Same. तो मुझे कुल मिला के क्वांट में 20 क्वेश्चंस के करीब करेक्ट करके आने हैं. If your accuracy is not good, then you should attempt 25 plus. If your accuracy is very good, then your attempt should be 22-23. And if you are aiming IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, if you are aiming a percentile of more than 99.5, then your attempts should definitely be more than 25. In neither case, I don't think anybody attempts more than 30 questions. So maximum 25 to 30 attempts ही होते हैं क्वांट में. Is it clear? अब ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस यूनिट से आते हैं, ठीक है ना, ये सारा डिस्कशन हम करते हैं. प्लीज नोट इट डाउन गाइज. अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसको प्लीज नोट इट डाउन. फिर देन आई विल बिगिन विद किस यूनिट से आते हैं, क्या होता है, कैसे क्लियर होता है कट ऑफ. ठीक है, तो अगर कैट में करीब 34 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये मान के चलिए इक्वल मिक्स होता है इजी का, मीडियम का और डिफिकल्ट का. और कभी कभी मैं 4 भी बना देता हूं, इजी, इजी मीडियम, मीडियम एंड डिफिकल्ट. इन 4 लेवल में आपके क्वेश्चन आते हैं. तो अगर आप इजी देखोगे तो अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस तो आपके इजी आएंगे. ठीक है, अराउंड इतना ही मान के चलिए 8 to 10 क्वेश्चंस आपके मीडियम आएंगे. अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस आपके इजी मीडियम आएंगे, 8 to 10 मीडियम आएंगे, और अराउंड 6 to 8 क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट आएंगे एक मीडियम पेपर में, नॉट ऑन अ हाई डिफिकल्टी. अगर हाई डिफिकल्टी हो गया सो दिस बिकम्स 6 to 8 एंड दिस बिकम्स मे बी अराउंड 10 to 12. ठीक है, तो इक्वली मिक्स होता है. तो अगर आप ये वाले दोनों पार्ट्स, ठीक है ना, अगर आप ये वाले दोनों पार्ट्स एग्जाम्स में लीव करके आए तो आपका कभी भी पेपर क्लियर नहीं होता. और अगर आपने ये वाला अटेम्प्ट कर दिया तो भी आपका पेपर क्लियर नहीं होता. ठीक है ना. सो व्हाट आई विल से कि इजी में से आप पूरे 8 to 10 क्वेश्चंस कर लीजिए. इजी मीडियम में योर अटेम्प्ट रेट शुड बी अराउंड 100% है. कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए. इजी मीडियम में जो 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें यू शुड एटलीस्ट डू 80% अटेम्प्ट. मीडियम में जो 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे you can do a 50% attempt. और जो difficult है 6 to 8, it's better to leave them even if there is a, if you want to do them, the attempt rate should not be 10 to 20%. ठीक है, अगर आप काउंट करोगे तो इजी के आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कर लोगे. इजी मीडियम में भी आप मान के चलिए 80% एक्यूरेसी पे यू विल डू 80% अटेम्प्ट पे 6 to 8 कर लेंगे. मीडियम में अगर आप 50% भी करते हैं तो 4 to 5 हो जाएंगे. और डिफिकल्ट में भी आप मे बी 1 or 2 नॉन MCQ ट्राई कर सकते हो. तो इससे होगा क्या, 8 6 14 18 19. सो योर अटेम्प्ट्स विल बी बिटवीन 19 to 18 24 26. 19 और 26 का एवरेज. सो योर अटेम्प्ट्स विल बी अराउंड 20 to 23. दिस इज एन आइडियल स्ट्रेटेजी टू गिव द पेपर. ईजी छूटना नहीं चाहिए. ईजी मीडियम ट्राई जितना हो पाए, मीडियम 50-50 कर लीजिए, डिफिकल्ट छोड़ दीजिए. डिफिकल्ट का बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है. इजी और इजी मीडियम, यहीं पे आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए. ठीक है ना. कैट स्ट्रेटजी पेपर है, इट इज अ स्ट्रेटजी पेपर. एंटायर स्ट्रेटजी लगानी है इसमें. ठीक है ना. इसमें बिल्कुल भी ईगो कैरी करके नहीं जाना है कि मेरा मैथ्स अच्छा है, मैथ्स खराब है. अच्छा भी, मेरा भी मैथ्स अच्छा है, बट मैं भी क्या करता हूं,
मैं यहीं से पेपर करके आता हूं, तभी मेरा स्कोर है। क्यों क्यों करना है ऐसा? बिकॉज 34 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। तो जो इजी इजी मीडियम है ना, दे आर सॉल्व अंडर 2 मिनट्स, दे आर सॉल्व अंडर 2 मिनट्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो अगर आप 20 क्वेश्चन 2 मिनट्स में सॉल्व कर देंगे तो आपका 40 मिनट्स ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये 6 to 8 करते हैं, और मान लीजिए मैं मान रहा हूं सही भी करते हैं, then you will at least waste around 4 to 5 minutes in solving this question. So there is no logic in solving difficult or solving medium. Medium करना है लास्ट पार्ट में, ठीक है। अभी मैं आऊंगा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग क्वांट कट ऑफ। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए, और जैसे मैं एक बार पेपर देने गया था, आई थिंक कैट 2018 में, थोड़ा सा क्वांट डिफिकल्ट आया था, ठीक है ना, थोड़ा सा क्वांट डिफिकल्ट आया था, ठीक है ना। अब अगर क्वांट का पेपर डिफिकल्ट आएगा तो वो पता कैसे चला मुझे? आई मेट माई स्टूडेंट्स आउटसाइड द सेंटर ओनली, एंड एग्जैक्टली आफ्टर गिविंग माई स्लॉट टू पेपर, आई वॉज लाइक ये पेपर टफ आया। पेपर टफ पता कैसे चलता? पेपर टफ पता चलता है इजी एंड इजी मीडियम क्वेश्चंस कितने आए हैं उसमें, ठीक है, और नॉन एमसीक्यूज भी कितने आए हैं। तो जिस साल पेपर टफ आया था, बिलीव मी गाइस, 22 क्वेश्चंस वर एमसीक्यूज एंड 12 क्वेश्चंस वर नॉन एमसीक्यूज। ऐसा कैट में कभी भी नहीं होता। कैट में नॉर्मली क्या होता है, आपके 27-28 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू, और बाकी 6-7 आते थे नॉन एमसीक्यूज। बट इस बार जस्ट उल्टा हो गया, आपके एमसीक्यूज बहुत कम आए और नॉन एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आए। उससे ही मुझे पता चल गया कि इस बार ना 45 मार्क्स पे ही 99 परसेंटाइल आ जाएगा, या 40 मार्क्स पे ही 99 परसेंटाइल आ जाएगा, एंड कट ऑफ विल बी एज लो एज 25 मार्क्स, ठीक है ना। ये आपको डिटेक्ट कैसे होगा? जब आप देखोगे कि पेपर में इजी इजी मीडियम क्वेश्चंस कम है, डायरेक्ट सिग्निफिकेंस है पेपर का कट ऑफ कम जाने वाला है। और अगर टफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट आप क्वेश्चन देख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है, मतलब पेपर का कट ऑफ कम जाने वाला है। आप बिल्कुल मॉडेस्ट खेलिए, योर अटेम्प्ट शुड बी अराउंड 15-20 दैट ईयर। पेपर में इजी इजी क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, अटेम्प्ट शुड बी मोर देन 20-25। दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ गिविंग अ क्वांट पेपर। मैं यहां बैठ के आपको कभी नहीं बोल सकता हूं कितने आइडियल अटेम्प्ट्स होंगे कैट में, वो तो पेपर के बाद ही पता चलेगा। व्हाट आई कैन डू, आई कैन ट्रेन यू कि कितने अटेम्प्ट्स करने हैं किस तरह के पेपर में, एंड दैट्स व्हाई giving mocks is the most important part in the CAT paper, and analyzing mocks will be even more important. Mock analysis is very very important in the paper, ठीक है ना। उसके लिए मैं बैठा हूं, आप डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। आप पिछले साल के कैट के पेपर दीजिए, एटलीस्ट पिछले 10 ईयर्स के, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे। कैट इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन। पिछले कितने सालों से इंग्लिश का पेपर इजी आ रहा था, बट कैट 2019 में इंग्लिश बहुत टफ आया। और अगर मैं कैट 2018 की बात करूं, इंग्लिश में 99 परसेंटाइल 70 मार्क्स पे आया था, ठीक है ना। सो आई वॉज वेरी श्योर, लास्ट ईयर भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था हो सकता है इस बार इंग्लिश का पेपर टफ आए, बिकॉज उसके पिछले 3-4 साल से एलआरडीआई का कट ऑफ अराउंड 20 मार्क्स जा रहा था, ठीक है ना। क्वांट इज समथिंग विच इज नॉट कम वेरी डिफिकल्ट ओनली फॉर 1 ईयर, इट हैज कम वेरी डिफिकल्ट इन द लास्ट 4-5 ईयर्स। सो वी माइट एक्सपेक्ट कि इस साल थोड़ा सा क्वांट डिफिकल्ट आए, ठीक है गाइज। तो क्या है सार क्या है? व्हाट इज द नेट एनालिसिस? द नेट एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर इज दैट कि आउट ऑफ 34, ठीक है, मेरे अटेम्प्ट्स 20 to 25 रहने चाहिए, ठीक है, इफ द पेपर इज मीडियम, ठीक है। इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, देन माई अटेम्प्ट्स हैव टू बी बिटवीन 18-20, एंड इफ माई पेपर इज ईजी, देन माई अटेम्प्ट्स कैन बी बिटवीन 25-28। 30 से ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी भी केस में करना है, बिकॉज वो तो जब करने पड़ेंगे जब पूरा पेपर ईजी आ गया। अगर पूरा पेपर ईजी आ गया तो मेरे 30+ अटेम्प्ट से कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक्यूरेसी खराब होती है। इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, और इफ आई चेक योर मॉक स्कोर, तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे बता दूंगा, हाँ दिस ही इज द काइंड ऑफ स्टूडेंट और शी इज द काइंड ऑफ स्टूडेंट हु शुड थिंक अबाउट डूइंग 30+ क्वेश्चंस इन कैट। क्लियर है गाइस? और इसमें मैंने क्या बताया, आपके इक्वल मिक्स आते हैं, 8 to 10 क्वेश्चन इजी, 8 to 10 क्वेश्चन इजी मीडियम, 8 to 10 क्वेश्चन मीडियम, और 6 to 8 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट आते हैं। क्या करना है? ये 100%, ये 80%, ये 50%, एंड दिस मे बी अराउंड 10%। ये करना ही नहीं है, ये पक्का करना है, ये भी पूरी कोशिश करना है करने का, एंड दिस शुड बी लाइक ओके, ठीक है, थोड़े बहुत कर लेंगे मीडियम के, ठीक है गाइज, दिस डेटा इज क्लियर।
ना कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यूनिट्स क्या है क्वांट में, आता क्या है, व्हाट आर द यूनिट्स विच कम्स इन क्वांट। तो सबसे पहला जो मेरा यूनिट है वो क्या है, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक बहुत बड़ा है, इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे परसेंटेजेस, परसेंटेजेस में भी आप पढ़ोगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर यहां क्या पढ़ोगे आप, रेशियोज, मिक्सचर्स, एवरेज, एवरेज, मिक्सचर्स, सॉल्यूशंस, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। और फिर क्या पढ़ोगे आप, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एस्केलेटर्स। बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं ये, छोटे यूनिट्स नहीं है, बट बिलीव मी दिस इज द इजीएस्ट विच कम्स इन द कैट। सेकेंड यूनिट जो है मेरा वो क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप क्या पढ़ते हो, बेस सिस्टम, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, फैक्टोरियल्स, डिविजिबिलिटी रूल, ऑल दोस थिंग्स। फिर आता है आपका एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में क्या, इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फंक्शंस, ग्राफ्स। द यूनिट विच प्रेफर्स इंजीनियर्स अ लॉट बिकॉज उन्होंने 11th-12th क्लास में भी एल्जेब्रा ली होती है। ज्योमेट्री, आपकी ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक आती है, सर्किल्स, रेक्टेंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड ऑल दोस स्टफ, लाइंस। और जो लास्ट यूनिट है वो क्या है मेरा, मॉडर्न मैथ्स। मॉडर्न मैथ्स में क्या आता है मेरा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वैसे तो मैं नहीं डिटरमाइन कर सकता किसमें कितने आते हैं, बट पिछले 7-8 साल के कैट के पेपर का मैं अगर एवरेज लूं तो अरिथमेटिक में अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक है ना, किसी किसी साल 12+ क्वेश्चंस भी आए अरिथमेटिक, ये चेंज होता रहता, बट आप ये मान के चलिए अरिथमेटिक में 7-8 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। इफ आई टॉक अबाउट नंबर सिस्टम, ऑन एन एवरेज नंबर सिस्टम में 5 to 7 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, 4 to 6, 4-5 क्वेश्चंस तो नंबर, और नंबर्स ऐसा यूनिट है जो सब में लगता है। एल्जेब्रा अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, 8 to 10 क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। ज्योमेट्री में अगेन 8 to 10 क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। मॉडर्न मैथ्स में नथिंग मोर देन 1 or 2 क्वेश्चंस, ये इतना इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है कैट में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरा, अरिथमेटिक, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। इसमें इजीएस्ट क्या है, अरिथमेटिक। इफ यू आर एन इंजीनियर, फोकस ऑन अरिथमेटिक प्लस एल्जेब्रा। इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर, फोकस ऑन अरिथमेटिक प्लस ज्योमेट्री। नंबर सिस्टम बाय डिफॉल्ट आना चाहिए कैट में बिल्कुल भी। देखो अब आप एक चीज समझो, स्टूडेंट्स मेरे पास डाउट्स लेके आते हैं, सर कोई यूनिट छोड़ दूं क्या, मैं अलजेब्रा छोड़ दूं क्या, मैं नंबर सिस्टम छोड़ दूं क्या। देखो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इजी, मीडियम, इजी, डिफिकल्ट सारे क्वेश्चंस मिक्स आते हैं। तो अगर आप अलजेब्रा के इजी अलजेब्रा नहीं किया सपोज आपने, या नंबर सिस्टम नहीं किया, अगर आप नहीं करोगे यूनिट और फिर क्वेश्चन, देखो बोर्ड का पेपर तो है नहीं कि 8 में से 5 करने, ठीक है, पता ही नहीं है कितने करने हैं। तो आपको इजी, इजी, मीडियम सारे करने हैं। अगर सारे करने हैं और तो अलजेब्रा के भी इजी क्वेश्चंस आएंगे। नाउ दैट इज लक कि आपने अलजेब्रा छोड़ा और अलजेब्रा के सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। तो फिर मुझे सारे यूनिट्स पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप ये भी प्लान करते हो कि मैं मॉडर्न मैथ्स कम पढ़ूंगा या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कम पढ़ूंगा, उसके 2 क्वेश्चंस आए, अगर वो बिल्कुल ईजी आ गए, आप 6 मार्क्स का लॉस कर दोगे। You lose 6 marks, and 6 marks are very important, especially at this level if you are getting a score between 30-40। अगर यहाँ 6 नंबर कम हो जाते हैं ना, your percentile goes from 90 to 80, आपका कॉल्स ही नहीं आएगा कॉलेज से, आपका कॉलेज से कॉल्स ही नहीं आएगा, इवन इफ यू वुड हैव गॉट अ 99 परसेंटाइल इन कैट। क्योंकि सेक्शनल भी मुझे आप ये मान के चलिए 85 परसेंटाइल प्लस लाना है आईएम्स के लिए, तीनों सेक्शन। इवन इफ यू आर गुड इन वर्बल एंड यू आर स्कोरिंग 70 मार्क्स इन वर्बल, तब भी बहुत डिफिकल्ट। ठीक है गाइस, तो मुझे सारे यूनिट पढ़ने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अरिथमेटिक रहेगा, क्योंकि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं नॉर्मली, इजीएस्ट यूनिट है आउट ऑफ ऑल द 4। ठीक है, नंबर सिस्टम इज समथिंग विच आई विल रेकमेंड कि प्लीज पढ़िए। लगता है क्वेश्चंस उतने ज्यादा कैट में नहीं आ रहे, बट दिस इज द कोर ऑफ मैथ्स। मैथमेटिक्स का कोर ही ये नंबर सिस्टम है। ठीक है, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री में आप थोड़ा सा डिसाइड कर लेना विच यूनिट यू वांट टू मेक योर स्ट्रेंथ। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे बैक करके कैट निकाल रहे हो तो फिर तो भाई बिल्कुल ड्रॉप करने का कोई यूनिट जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ज्योमेट्री में आपको बिलीव मी अगर 7-8 क्वेश्चंस आते हैं, एक दो इतने लेंथी और डिफिकल्ट आते हैं आप सारे नहीं कर पाओगे, तो एल्जेब्रा विल नीड योर हेल्प। और एल्जेब्रा में अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो वो सब कुछ आने लगता है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर। ठीक है ना, तो एल्जेब्रा में व्हाट विल सेव यू, लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फंक्शन एंड ग्राफ जहां से शुरू होता है वहां पे मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है गाइस, पता चल गया पेपर में क्या आता है, कितने क्वेश्चन किससे आते हैं, किसकी कितनी, ये मैं नहीं डिफाइन कर सकता कि इजी क्वेश्चन किस यूनिट। हो सकता है अलजेब्रा के क्वेश्चन इजी आ जाए, हो सकता है अरिथमेटिक, लेकिन अगर आपको कैट का कट ऑफ निकालना है, प्लीज बिलीव मी गाइस, अरिथमेटिक करना बहुत जरूरी है।
अरिथमेटिक में एकदम रिस्क मत लेना, क्योंकि एक बार अरिथमेटिक के 10-12 क्वेश्चन आ गए थे तो फिर पेपर का कट ऑफ वहीं से क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, कभी कभी लक हार्ड भी रहता है, अरिथमेटिक के 6-7 क्वेश्चंस भी आए हैं, बट अरिथमेटिक विल आल्सो हेल्प यू इन डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआई में भी बहुत अरिथमेटिक आती है, तो अरिथमेटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एक बार जब मैंने कैट का पेपर दिया था तो देखिए क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड। सो देयर वर अराउंड 12 क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक ओनली एंड देयर वर अराउंड 2 केसलेट्स ऑफ क्वांट बेस्ड डीआई। तो अगर आप देखोगे तो टोटल 2 केसलेट्स मतलब 8 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस तो मेरे अरिथमेटिक से ही आ गए थे पेपर में। 20 आउट ऑफ 100, 100 क्वेश्चन आते हैं ना कैट में, 20%, मतलब 60 मार्क्स का पेपर तो सिर्फ अरिथमेटिक का आया था कैट में। मैन विच इज बिग, बिलीव मी गाइस, दिस इज बिग। अगर अरिथमेटिक आती होती किसी भी स्टूडेंट को तो उसका 60 में से 50 भी आ जाता। ओवरऑल कैट में 150 नंबर लाने होते हैं 98-99 परसेंटाइल लाने के लिए। सोचिए 50 नंबर एक ही यूनिट से आ गया है। सो प्लीज गाइज, प्लीज अरिथमेटिक बहुत अच्छे से करना। अरिथमेटिक इज समथिंग विच यू हैव स्टडीड फॉर इन क्लास 9th एंड 10th, और कैट वैसे भी प्रेफर करता है नॉन इंजीनियर्स को, तो अरिथमेटिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, एंड एल्जेब्रा विल टेक टाइम गाइज, एटलीस्ट 15-20 दिन तो लगेंगे आपको पूरा एल्जेब्रा पढ़ने में। अगर पहले से पढ़ रखा है, बिलीव मी, अगर आपकी एल्जेब्रा ऑटोमेटिक अच्छी है, कैट इज द पेपर फॉर यू। ठीक है ना, बहुत ईजी है। ज्योमेट्री में थोड़ी थ्योरम्स वगैरह ज्यादा है, नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा है, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ठीक है ना, परसेंटेजेस और रेशियोज की ऑलरेडी मैंने क्लासेस लेनी शुरू कर दी है, यूट्यूब पर भी, स्पेशल क्लासेस पर भी। सो प्लीज प्लीज बी श्योर यू डू दोस क्लासेस। ठीक है गाइज, चलिए, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी टू क्लियर द क्वांट कट ऑफ। कट ऑफ क्लियर करने की स्ट्रेटेजी क्या है क्वांट में, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इसके ना मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो पता है स्ट्रेटेजी, वो है बकेट मेथड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बकेट मेथड। और जो दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड एज डिवाइड पेपर इनटू 4 हाफ्स। लेकिन नॉर्मली बकेट मेथड अप्लाई करता हूं, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बकेट मेथड क्या होता है, बकेट मेथड ऐसा होता है कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13। सपोज भाई ऐसे कैट का पेपर करना शुरू किया, मैंने क्वेश्चन 1 रीड किया एंड विद इन 20 सेकेंड्स मैं इसको बकेट में डालूंगा। देयर आर 3 बकेट्स। कितनी बकेट्स है, देयर आर 3 बकेट्स। बकेट 1 इज इजी, बकेट 2 इज मीडियम, बकेट 3 इज डिफिकल्ट। इसका मतलब क्या है, अगर 20 सेकेंड्स में मुझे लगा हर हालत में, आई शुड बी 100% श्योर, ठीक है, कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाएगा, मतलब इजी है, सॉल्व हो जाने से भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो मैं इसको किस में डालूंगा, इजी में। अगर मुझे लगा शायद मुझसे हो जाएगा, आई एम नॉट फुली श्योर, देन इट विल गो इनटू अ मीडियम लेवल। एंड अगर मुझे लगा देख के कि मुझसे नहीं होने वाला है, तो मैं उसको कहां पे डालूंगा, डिफिकल्ट। हाउ विल यू डू दिस बकेट, अगर इजी है तो सॉल्व करो, अगर मीडियम है तो मार्क करो, और अगर डिफिकल्ट है तो लीव करो। बस दीज आर द 3 थिंग्स विच आई विल डू विद द क्वेश्चन, एंड दैट आई विल डू इन द 20 सेकेंड्स। आई हैव टू डू इट इन 20 सेकेंड, इसीलिए हम प्रैक्टिस करेंगे। और 20 सेकेंड्स के बाद मुझे लगा मुझसे ये क्वेश्चन होने वाला है, मैं कहूंगा चलो करते हैं। लगा शायद होने वाला है, मैं उसे मार्क करूंगा, एल्स आई विल लीव इट। तो सपोज मैं ये 34 क्वेश्चंस के साथ मैं ये स्ट्रेटेजी, सपोज मैं अभी 13 ही क्वेश्चन आए कैट में, सपोज 13 क्वेश्चन आए कैट, इफ देयर आर ओनली 13 क्वेश्चंस व्हिच केम इन कैट, ठीक है, या सपोज करो मैं 17 तक ले गया, आधा पेपर कर रहा हूं मैं पहले पे आधा पेपर कर रहा हूं, तो मुझे क्या हुआ, मुझसे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, मैंने 6 क्वेश्चन मार्क कर लिए। ठीक है, और मुझसे 6 क्वेश्चन क्या लगे, लीव। मैंने क्या किया, लीव। तो मेरा जो टोटल टाइम वेस्ट होगा वो कितना होगा, 17 इंटू 20 सेकेंड्स, विच विल बी वॉट, 340 सेकेंड्स। 340 सेकेंड्स का मतलब कितना होगा, 340 सेकेंड्स का मतलब ऑलमोस्ट 6 मिनट्स। ऑलमोस्ट कितना, 6 मिनट्स। मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, हर क्वेश्चन चूंकि इजी लेवल का है, 1-1.5 मिनट्स मुझे सॉल्व करने में लगेगा। तो यहां पे कितना टाइम हो गया मेरा, 7.5 मिनट्स। होगा क्या, मेरे 7.5 और 6 कितने हो गए, 13 मिनट्स।
मेरे 13 मिनट्स में कितने नंबर आ चुके होंगे? 15 नंबर। ठीक है ना? एंड आई विल रिपीट दिस सेम थिंग विद द रिमेनिंग हाफ ऑफ द पेपर। अगर मैं पूरे सेकंड हाफ के साथ भी ये रिमूव कर देता हूं तो मेरे 13 मिनट्स और वो वेस्ट होंगे और मेरे 15 नंबर और आ चुके होंगे। ठीक है ना? तो ओवरऑल देखिए गाइस क्या होगा, ओवरऑल गाइस क्या होगा, मुझे पूरे पेपर में वो 10 इजी क्वेश्चन मिल गए जो मुझे करने थे। ठीक है, इस प्रोसेस में मेरा 25 मिनट्स लगे और चूंकि सारे इजी हैं तो मुझसे सॉल्व हो जाएंगे। तो कितने मार्क्स आएंगे मेरे? 30 मार्क्स। दिस शुड बी, दिस इज कॉल्ड एज राउंड वन। राउंड वन ये है। राउंड वन में मुझे कैट में कितने नंबर लाने हैं? 30 to 35। जितने मेरे राउंड वन में आएंगे उतने ही समझ लो कट ऑफ है पेपर का। तो अगर किसी दिन मेरे 20 मार्क्स आ रहे हैं राउंड वन में, इसका दो मतलब है, या तो कट ऑफ पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है या मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है या माई मैथ्स इज नॉट गुड। कट ऑफ 85 परसेंटाइल एग्जैक्टली उतने पे आता है जितने इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अगर 85 परसेंटाइल 30 मार्क्स पे आ रहा है मतलब 10 क्वेश्चन इजी थे, 36 पे आ रहा है मतलब 12 क्वेश्चन इजी थे, 25 पे आ रहा है मतलब 8 क्वेश्चन इजी। ये फिक्स है, दिस इज फिक्स्ड। इज इट क्लियर गाइस? अब मेरे 25 मिनट्स वेस्ट हो गए। अब मैं 25 मिनट्स किन क्वेश्चन को दूंगा? वो 10 क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए थे, वो 10 क्वेश्चन जो मैंने क्या किए थे? मार्क। वो 10 क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए थे। मेरे पास 25 मिनट है, उन 25 मिनट में मैं क्या करूंगा? 7 to 8 अटेम्प्ट तो कर ही लूंगा। 2-3 मिनट लगेगा, 3 मिनट्स भी मान के चलो आपको एक क्वेश्चन में लग रहा है, और उसमें आपने 5 to 6 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे? ऑलमोस्ट 15 मार्क्स। राउंड टू में मुझे कितने मार्क्स टारगेट करने हैं? 15 मार्क्स। ठीक है, अब जो मेरे पास 10 मिनट बचे हैं उसमें मैं ट्राई क्या करूंगा? मैं एटलीस्ट 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करूं और उसमें से 2 सही कर दूं। वो इट कुड बी इजी, मीडियम, इट कुड बी डिफिकल्ट। अब आप डिफिकल्ट करोगे किसमें? राउंड 3 में, लास्ट 10 मिनट्स में। तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है यहां पे भी यू विल गेट एटलीस्ट 5-6 मार्क्स। तो आपका ओवरऑल स्कोर है वो कितना हो जाएगा? 50-55 मार्क्स के अराउंड, एंड यू विल फेच अ 99 परसेंटाइल इन कैट। परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। मैं पिछले 8 साल से ऐसी पेपर दे रहा हूं, हर साल मेरा 99 परसेंटाइल प्लस आया है क्वांट पे। मे बी आई वुड हैव नॉट गॉट अ 99.9 एवरी टाइम, बट मेरा 99.1, 99.3, 99.7 हम पक्का आ जाता है इस स्ट्रेटेजी से। ठीक है ना? अब ये स्ट्रेटेजी उल्टा भी वर्क करती है कभी कभी। जैसे पूरा का पूरा पेपर इजी आ गया सपोज करो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन इजी आ गए। ठीक है, अगर बहुत सारे क्वेश्चन इजी आ गए और 15 to 20 क्वेश्चन इजी आ गए तो क्या चलता रहता है? सिर्फ राउंड वन। फिर राउंड वन और राउंड टू चलेगा, राउंड थ्री चलेगा ही नहीं। 15-20 क्वेश्चंस आ गए। अब इन 15-20 में से अगर मैं सपोज 20 क्वेश्चंस इजी आ गए तो उनमें 15 भी अटेम्प्ट कर लेता हूं, 2-3 मेरे गलत हो जाते हैं, सो राउंड वन में ही मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे? 40 प्लस। लेकिन मेरा टाइम भी कितना वेस्ट होगा? 40 मिनट्स। फिर मैं राउंड टू पर जाऊंगा और राउंड टू में मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा? 5 से 10। कितनी देर में? 20 मिनट्स में रिमेनिंग। और इसमें से अगर मेरे 5 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, या 5 से 10 आप अटेम्प्ट करोगे तो फिर आपके एटलीस्ट 6-7 सही हो जाने चाहिए, तो आपके 18-20 मार्क्स आ जाएंगे। तो आपका कितना स्कोर हो जाएगा? 60 प्लस, अगेन 99% आएगा। पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाता है तो फिर से राउंड टेक्निक लगाने में प्रॉब्लम होती है। जैसे एक बार मैं कैट का पेपर कर रहा था, उसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन इजी थे, तो फिर मेरे राउंड वन में कितने मार्क्स आएंगे? 18 मार्क्स। लेकिन राउंड वन मेरा कितनी देर में खत्म हो जाएगा? 20 मिनट्स में। अब क्या है? अब 6 क्वेश्चन आया तो 18 ही कट ऑफ गया है, ये पक्का बात है। तो मुझे कैट में टारगेट कितना करना है? 40 मार्क्स। तो अब मैं क्या करूंगा? 20-20 मिनट्स के तीनों राउंड बना दूंगा और अगले 20 मिनट्स में मैं क्या करूंगा? इजी मीडियम। अगर इजी मीडियम मुझे 10 क्वेश्चन मिल गए, मीडियम 10 मिल गए, तो आई ट्राई कि मैं उनमें 5, इधर पे मैं एक्यूरेसी पे वर्क करूंगा कि मेरा गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी। अगर मेरे 5-6 क्वेश्चन यहां पे मैंने सही कर दिए तो फिर मेरे 18 नंबर आ जाएंगे, तो फिर आई विल गेट अ 36 मार्क्स। और लास्ट के 10-15 मिनट्स में ट्राई क्या करूंगा? मेरे 10 नंबर और आ जाए, सो आई लैंड अप विद 45 प्लस, इट मींस अ 99 परसेंटाइल। ठीक है, तो मैं इसको केस के फॉर्म में बना देता हूं आपको, केस के फॉर्म में। ठीक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, रियलिस्टिक सिनेरियो एंड पेसिमिस्टिक सिनेरियो। इसके अलावा कोई सिनेरियो जिंदगी में होता नहीं है।
सो कोविड-19 अभी हम झेल रहे हैं, सो दिस इज अ पेसिमिस्टिक सिनेरियो। रियलिस्टिक सिनेरियो क्या था? इंडिया की इकोनॉमी डूबी हुई है। ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो क्या था? द बेस्ट थिंग विच was happening when मनमोहन सिंह was the finance minister of India। ठीक है ना, ये 3 केसेस है। तो ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो क्या है कि कैट का पेपर इजी आ गया। बिलीव मी गाइस, जिन लोगों की मैथ्स, मेरे ना हमेशा कैट का पेपर जब डिफिकल्ट आता है ना, सो माय परसेंटाइल इज अराउंड 99.8 एंड 99.9 इन क्वांट। और जैसे ही कैट का पेपर इजी आ जाता है ना, मेरा परसेंटाइल हो जाता है 99.2 या 99.3। हर साल होता है, हर बार होता है। तो मेरे लिए ना ये वाला सिनेरियो वर्क करता है। आई परफॉर्म द बेस्ट इन दिस सिनेरियो और इन दिस सिनेरियो। बट for the student community, I think these two are the scenario which you should work। तो ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में क्या होगा? मेरे 15 प्लस क्वेश्चंस राउंड 1 में होंगे। उसमें मेरा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा? एटलीस्ट 35 टू 40 मिनट्स। और इस राउंड में मेरे कितने नंबर आ जाने चाहिए? अराउंड 40 मार्क्स। अगर पेपर इजी आ गया तो राउंड 1 में ही 40 ले आना, वरना नहीं होगा कैट में क्लियर। फिर जो मेरे 20 मिनट्स बचे हुए, उनमें मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा? 8 टू 10। और उसमें मैं टारगेट करूंगा 8 टू 10 में मेरे एटलीस्ट 20 और मार्क्स आ जाए। तो मेरा टोटल कैट में कितना आ जाएगा? 60 प्लस। ये बेस्ट सिनेरियो है। 60 प्लस लाना पड़ेगा फिर 99 प्लस लाने के लिए। रियलिस्टिक सिनेरियो क्या है? यही होता है नॉर्मली कैट में, यही केस आएगा। 90% प्रोबेबिलिटी है यही होने वाला है। 5% प्रोबेबिलिटी इसकी है, 5% प्रोबेबिलिटी इसकी है। बट वी विल प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड द बेस्ट। रियलिस्टिकली क्या होगा? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों होंगे। राउंड 1 को कितने देर देना है मुझे? 25 मिनट्स। उसमें मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा? 8 टू 10। मेरे कितने नंबर आ जाएंगे? अराउंड 20 मार्क्स। फिर मैं राउंड 2 को कितनी देर दूंगा? 25 मिनट्स। इसमें मैं कितने क्वेश्चन करूंगा? मतलब यहां पे मैं 8 टू 10 करूंगा, तो यहां पे मेरे को 25 मार्क्स टारगेट करने हैं। और इनफैक्ट और ज्यादा, 25 प्लस। राउंड 2 में फिर मुझे कितने क्वेश्चन मिलेंगे? एटलीस्ट 10 टू 12 क्वेश्चन मिलेंगे मुझे। उनमें से मैं 8 सही कर देता हूं तो फिर मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे? 20 मार्क्स। फिर मैं किस पे जाऊंगा? राउंड 3 पे। और राउंड 3 पे मैं कितने नंबर और लाने की कोशिश करूंगा? 10 नंबर और लाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 25 एंड 20 एंड 10, मतलब 50 प्लस। 50 प्लस पे कितना आ जाएगा मेरा? 99%। प्रे टू गॉड इफ यू आर नॉट गुड इन कॉन्ट्स और ये सिनेरियो आए। इसके लिए हमें प्रिपेयर करना, यहां से बच्चों का पेपर निकल जाता है, फिर कैट 2 बार में क्लियर होता है। तो कैट किसी बच्चे का ना उस बेसिस पे क्लियर करता है कि पेपर इजी आया कि डिफिकल्ट आया। उस पर डिपेंड ही नहीं करता उसने पढ़ाई कितनी की है। अगर ये वाला सिनेरियो हो गया तो आपका राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा 15 मिनट में, मे बी 10 मिनट में, 15 मिनट में। कितने नंबर आएंगे राउंड 1 में? आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, आपके 15 से 20 नंबर आएंगे बस राउंड 1 में। जितने नंबर आएंगे उतनी कट ऑफ है। पहले तो ये ले आना। फिर राउंड 2 को आप कितना टाइम देंगे? राउंड 2 को बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, मान के चलिए एटलीस्ट 20-25 मिनट्स। उसमें आपको मिलेंगे बढ़िया 10-12 क्वेश्चन। और फिर आप कितने नंबर टारगेट करोगे? अराउंड 15 टू 20। फिर राउंड 3 फिर से कितनी देर का होगा? 10 टू 15 मिनट्स का। और इसमें आप कितने नंबर को टारगेट करोगे? मेनली 5 मोर मार्क्स। तो 15, 15, 30, 35, तो आपका स्कोर कितना आ जाएगा? 40 प्लस। और इधर पे कितना आ जाएगा? 99। 3 चीजें ही होने वाली है कैट में, या तो 60 प्लस स्कोर आएगा, या 50 प्लस स्कोर आएगा, या 40 प्लस स्कोर आएगा, मतलब कट ऑफ। तो वो जो मतलब 99 परसेंटाइल लाने के लिए। ठीक है ना गाइज? तो अगर कैट का कट ऑफ 60 प्लस पे 99 परसेंटाइल आया क्वांट में, इसका मतलब क्या है? पेपर क्या है? इजी। अगर 50 प्लस पे 99 परसेंटाइल आया तो पेपर क्या है? मीडियम। और 40 प्लस पे 99 परसेंटाइल आया मतलब पेपर क्या है? डिफिकल्ट। राउंड टेक्निक्स कहां प्रयोग करेगी? यहां पे राउंड टेक्निक करो नहीं करो, जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेपर इजी आ गया तो स्ट्रेटेजी की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप बस पेपर करते चले जाओ, बोर्ड का पेपर जैसा हो जाएगा, क्वेश्चन करते चले जाओ, होता चला जाएगा। ठीक है, दिस इज वाई इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन द फाइनल ईयर। उस साल उस सेक्शन का पेपर इजी आ जाता है, उनका परसेंटाइल 95 आ जाता है, उनको लगता है कैट का पेपर बहुत ईजी है। कैट का पेपर इजी नहीं है, आपका एलआरडीआई में फिर कट ऑफ नहीं निकलता है। ऐसा तो हो नहीं सकता तीनों सेक्शन इजी आए। एक सेक्शन टफ आएगा, एक सेक्शन इजी आएगा, एक सेक्शन मीडियम आएगा, या फिक्स है। कौन सा आएगा वो नहीं पता।
तो मैंने आपका एलआर स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनवाया है, तो वो भी देखना, उसमें भी मैंने रियलिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक तीनों सिनेरियो की बात की हुई है। ठीक है ना। आपको राउंड 1 में कितने क्वेश्चन मिलते हैं उससे पेपर का आइडिया लग जाएगा, उस हिसाब से स्कोर करना। ऐसा हो सकता है कि आपका 26 नवंबर को पेपर है ना, और आप 20 नवंबर को ही सोच के गए थे, 20 नवंबर को आपने लास्ट मॉक दिया था और उस दिन आपका क्वांट में 65 आया था और आपके करीब 25 अटेम्प्ट्स किए थे आपने, और उसमें से आपके सपोज करिए 22 अटेम्प्ट सही हो गए थे। अब आप कैट का पेपर गए बहुत अग्रेसिव माइंडसेट से कि यार मैं तो फाड़ दूंगा, मैं तो 70 नंबर ले आऊंगा कैट में, 60 से नीचे तो लाना नहीं। अब क्या हुआ, कैट का पेपर आ गया बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। अब पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया और आपने क्या कर दिया, आपने फिर से 25 अटेम्प्ट्स कर दिए, क्योंकि बच्चे ना ये बड़ा सारा माइंडसेट बना देते हैं कि मेरे अटेम्प्ट्स कम है तो मेरा कैट नहीं निकलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इफ योर एक्यूरेसी इज राइट, इफ योर एक्यूरेसी इज राइट, कभी भी कैट का पेपर नहीं। अगर आप सिर्फ कैट पे 50 क्वेश्चन करके आए हो 100 में से और आपके 45 सही हो गए ना गाइस, तो 45 3 130, 130 मार्क्स आ गए। 130 मार्क्स का मतलब ऑलमोस्ट 96-97% है। प्रोफाइल अच्छी थी, आईएम अहमदाबाद से कॉल आ गई, आपका हो गया। और एक जो बच्चा है उसके 70 अटेम्प्ट्स किए थे, ठीक है, उसने 70 अटेम्प्ट्स किए थे और उसके 20 गलत हो गए। उसके कितने स्कोर है, 53 150, उसके भी 130 मार्क्स आए। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, उसके भी 130 है, इसके भी 130 है, और उसका प्रोफाइल अच्छा नहीं था। ही एंडेड अप गेटिंग इनटू मे बी आईएमटी गाजियाबाद। पूरा लाइफ चेंज हो गया। ठीक है, आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से भी स्कोर करना। इफ योर प्रोफाइल इज वेरी वेरी गुड, बी अ लिटिल कंजर्वेटिव एंड ट्राई कि मेरा वर्स्ट केस में 95 परसेंटाइल आ जाए, क्योंकि आपकी वैसे भी अहमदाबाद बैंगलोर से कॉल आने वाली है, वैसे भी एसपी जैन कॉल करने वाला है, वैसे भी इंदौर कॉल करने वाला है। एंड इफ योर प्रोफाइल इज नॉट वेरी गुड, देन योर अटेम्प्ट्स हैव टू बी हाई। फिर वहां आप 50 अटेम्प्ट करके आओगे ना, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो प्रोफाइल बिल्डिंग सेशन, ऑल दी सेशंस आई विल बी टेकिंग योर्स, तो आप अकॉर्डिंगली अपना ट्राई मारना। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया क्वांट में स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, रियलिस्टिक, उसके अलावा यूनिट्स क्या क्या है और कैसे कितना कट ऑफ जाता है क्वांट का। आप ये मान के चलिए क्वांट का कट ऑफ का मतलब 99 परसेंटाइल के लिए मुझे या तो 40 लानी है या 50 लानी है या 60 लानी है। अगर 95 परसेंटाइल लाना है तो इस केस में 30 लाने होंगे, इस केस में 40 लाने होंगे, इस केस में 50 लाने होंगे, इतने तो लाने ही हैं। और अगर आप ऑप्टिमिस्टिक है लाइफ में तो ये वाला टारगेट करिए। ये कैसे आना है, राउंड टेक्निक से। ये कैसे आना है, राउंड टेक्निक से। राउंड टेक्निक क्या होती है वो मैंने आपको बताई है, किसी दिन मैं मॉक एनालिसिस करूंगा तो और अच्छे डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक मॉक देख चुके हो गए, ये सेशन बहुत इफेक्टिव लगेगा आपको। ठीक है गाइस, नाउ सी द सेकंड टेक्निक। सेकंड टेक्निक ऑफ क्लियरिंग द क्वांट पेपर। सेकंड टेक्निक क्या है, आप एक बार में 10-10 क्वेश्चन पकड़िए, 10-10-10 में भी 4 बचेंगे, उनको छोड़ दीजिए। 10-10 क्वेश्चन को करिए एंड टेक द टाइम एज 20 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। मे बी बेटर होगा अगर हम 12-12 और 10 क्वेश्चन के ऐसे बना दें, मे बी 11-11-12 सबसे बेटर क्या होगा। चलो मैं बना ही देता हूँ। आप कैसे कर दो, पहले 11 क्वेश्चन 20 मिनट में करिए, फिर अगले 11 क्वेश्चन 20 मिनट में करिए, फिर लास्ट के 12 क्वेश्चन आप 20 मिनट में करिए। पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और अब राउंड टेक्निक लगाइए। जैसे ही 20 मिनट्स पेपर में ओवर हो जाए, आप ये वाला पार्ट पेपर का छोड़ दोगे। अगर इतना कंट्रोल है तो ही करना, वरना मत लगाना। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। तो मैंने क्या किया, पहले 11 क्वेश्चन, सिर्फ पहले 11 क्वेश्चन देखे, उसमें से मैंने 3-4 इजी पकड़ लिए और 3-4 मीडियम पकड़ लिए। ठीक है ना, सपोज यहाँ मेरे 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, मेरे 12 नंबर आ गए, और इन 3-4 में से मेरे 2 सॉल्व हो जाते हैं, 2 गलत हो जाते हैं, तो मेरे कितने नंबर आ गए, 4 नंबर यहाँ आ गए, तो मेरे कितने नंबर आ गए, 16। 16-17 में यहाँ से लाऊंगा, 16-17 में यहाँ से लाऊंगा, 16-17 में यहाँ से लाऊंगा, तो मेरे कैट में कितने नंबर आ जाएंगे, 50 मार्क्स। पेपर बैलेंस हो नहीं हो, लगातार क्वेश्चन ईजी है, लगातार क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर क्लियर हो जाएगा। कैट में याद रखना, आपको 60 मिनट्स हैं और आपको 60 मार्क्स लाने हैं। अगर आप हर मिनट में 1 मार्क्स लाएंगे, आपका कैट का पेपर क्लियर हो जाएगा। कैट का पेपर का हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम आपको कितना लाना है, मे बी अराउंड 120, 180, 200। पेपर का टाइम कितना होता है, 180 मिनट्स। पेपर का टाइम कितना होता है, 180 मिनट्स। तो 180 मिनट्स में अगर आपको 180 मार्क्स लाने हैं, मतलब हर मार्क्स कितना है, 1 मार्क्स पर मिनट।
इज इट क्लियर गाइस? ये दूसरी स्ट्रेटेजी है क्वांट का कट ऑफ निकालने के लिए। ये भी मैं कभी कभी अप्लाई करता हूं मॉक्स में, आप ट्राई कर लीजिए। राउंड वाली टेक्निक्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। राउंड वाली टेक्निक्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये जब बैकफायर कर सकती है अगर लगातार 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए तो क्या करोगे फिर आपको कॉल लेना पड़ेगा। देन यू विल शिफ्ट फ्रॉम दिस टेक्निक टू अ राउंड टेक्निक। राउंड टेक्निक क्या होती है? बड़ी बैलेंस टेक्निक है, कैसा भी पेपर है सब में वर्क करता है। इसमें अगर पूरा पेपर इजी आ गया फिर कोई मतलब ही नहीं है, या पूरा पेपर डिफिकल्ट आ गया फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो आप कैसे भी करो, राउंड टेक्निक फिर भी वर्क करेगी। आप बस इतना भरोसा करके जाओ, कैट में इजी, मीडियम और डिफिकल्ट तीनों तरह के क्वेश्चन आएंगे। जब आप मॉक्स देंगे ना तो मेरी बात समझ आएगी, और अगर आप मॉक्स दे चुके हैं तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेशन। ठीक है गाइस, सो दिस इज इट फॉर टुडे। मेरे को आपको यही बताना था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कट ऑफ्स कैसे निकलते हैं। कमिंग बैक टू द सब्सक्रिप्शन मॉडल, दिस इज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, दिस इज द कोड RKUS, प्लीज प्रोसीड टू पे वाया दिस कोड, you will get a discount of 10%. ठीक है, and you can also subscribe to a telegram group, like, share, subscribe to a telegram group. Again I am repeating you, this is my code RKUS, write it down, RKUS is my code, you will get a discount of 10% if you use this code. ठीक है ना? बाकी हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज कीप ऑन स्टडिंग, प्लीज कीप ऑन अप्लाइंग दी स्ट्रेटेजीज टू क्लियर द क्वांट पेपर। कभी भी मुझसे आप लाइव चैट करिए, देर आर सर्टेन स्पेशल क्लासेस जो होने वाली है, सो आई हैव अ स्पेशल क्लास एवरी ऑल्टरनेट डे। आप लोग प्लीज अपने अन अकेडमी चैनल पर देखिए वो सब। ठीक है ना गाइज? चलिए, थैंक्स अ लॉट।